लोगों को यहाँ पे जो भी लोकेशन है ये चेंज नहीं करनी है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे पास गिट रिपॉजिटरी। अगर आप लोग किसी भी तरह की गिट रिपॉजिटरी पे काम कर रहे हैं, अगर आप लोग अपने गिट रिपॉजिटरी बना रहे हैं, तो ये बात हमें इंश्योर करनी होगी कि हम लोग अपनी लोकेशन को चेंज ना करें। ठीक है। सो वामसी, इज इट नेसेसरी टू नॉट change your location whenever you are going to create a git repository into your interface? Okay. ओम प्रकाश जी क्लियर है? सुशांत ये बात क्लियर है? राजेश जी क्लियर है? वामसी, इज इट क्लियर? नाउ द थिंग इज दैट हेयर वी हैव एन ऑप्शन। हमारे पास एक ऑप्शन आता है नीचे, क्रिएट गिट रिपोजिटरी का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सिस्टम इंटरफेस के अंदर एक गिट रिपोजिटरी रेडी हो जाएगी और आप जब भी चाहें इसको पब्लिश कर सकते हैं गिटहब के ऊपर। ठीक है। सो वेन एवर यू विल क्लिक ओवर दिस चेक बॉक्स आइकन और चेक बॉक्स, a Git repository will create it into your interface, and whenever you will need, you will just able to push it over GitHub. Okay. Now the thing is build systems. We have 3 build systems right now into this part. So the build systems है, that means थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझिएगा क्या मतलब है इस बात का। कोई भी एप्लीकेशन, जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, whenever we are developing any kind of application, we have 2 different parts or we have 2 different scenarios. One scenario is, पहली इसमें जो चीज़ आती है वो आते हैं डेवलपमेंट टूल्स। पहला आता है इसमें डेवलपमेंट टूल्स, या आप कह सकते हैं डेवलपमेंट क्राइटेरिया। डेवलपमेंट टूल्स से क्राइटेरिया का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में आ गया, लेट्स सपोज हमारे पास जैसे कॉटलिन आ गई हमारे पास में, या हमारे पास में XML आ गई, या हमारे पास जेटपैक कंपोज आ गया। ये सारी चीज़ें क्या है, डेवलपमेंट टूल्स हमारे पास में। ठीक है। सो whenever we are going to develop some kind of applications, we have 2 different tools. Out of them, one is development tools, in which Kotlin, XML, Jetpack Compose, all these things are comes into this development tools, where we are just going to build some kind of applications or code it or make some code to develop some kind of applications. Okay. And the second thing is the build systems. The second thing is your build systems or building parts. What exactly these build systems are? ये build systems exactly क्या होते हैं? Build system exactly एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, एक तरह का ऐसा सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर पैकेज आप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज आप कह सकते हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट टूल्स को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है। What exactly these build systems do? These build systems provide an environment to our Kotlin or to our development tools. For example, अगर हमें कोई लाइब्रेरी, कोई मेरे पास मान लेते हैं किसी दूसरे सर्वर पर कोई लाइब्रेरी पड़ी हुई है। ठीक है। अब अगर मुझे उस लाइब्रेरी को अपने एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट करना है तो मैं उसे डायरेक्टली इनबिल्ट नहीं कर सकता। उसे इनबिल्ट करने के लिए मुझे बिल्ड सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी। बिल्ड सिस्टम्स क्या करेंगे? बिल्ड सिस्टम्स इस लाइब्रेरी के सारे कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट करेंगे और इसको उस लायक बनाएंगे ताकि हम डेवलपमेंट टूल्स में इसको यूज कर सकें। ओम प्रकाश जी वाली बात समझ में आ रही है? राजेश जी क्लियर हुआ है? सुशांत आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी? क्लियर है? ओके। Vamsi, here it is that we have a build systems. Here. What exactly this build system will do? This build system provides an environment to work for this development tools. Okay. For example, if we have a library here and I need to implement this library, or I need to just use this library into my application. So what I do, I'll provide this library to this build system.
These build system will adopt this library or import this library and make it compatible with these development tools, so that we can easily use these development tools, or we can use this library to this development tools and so on. So overall, all the configurations, whatever we have of the application, will be adjusted or will be handled by these build systems, while the coding part or the development part will be handled by this development tools. So we have two different parts. One is development tools and one is build systems. Okay. पूरी चीज समझ में आ गई? वामसी से क्लियर हुई हो? वामसी, I can't hear you. Okay, okay. Yeah, I am here. Okay. So कितने तरह के बिल्ड सिस्टम्स हमारे पास में होते हैं? हमारे पास इंटेलिजे होता है, मेवन होता है, ग्रिडल होता है। सबकी अपनी अपनी खासियत है, हर किसी की अपनी अपनी खासियत है, पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग ग्रिडल का यूज़ करेंगे। इधर हमारे पास मेवन है, ग्रिडल है और इंटेलिजे है, तो हम यहाँ पे ग्रिडल का यूज़ करने वाले हैं। ग्रिडल के अंदर भी, अच्छा ग्रिडल हमें कहाँ मिला था? थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर रिसर्च करें, इफ वील गो एंड रिसर्च ओवर दिस पार्ट, थोड़ा सा हम लोग ग्रिडल डालते हैं। सो ग्रिडल क्या करता है हमारे पास? इफ यू विल वर्क विद ग्रिडल, ग्रिडल एक ओपन सोर्स बिल्ड सिस्टम होता है जो जावा, एंड्रॉयड और कॉटलिन के साथ मिलके काम करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इफ यू आर गोइंग टू डेवलप सम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस व्हिच हैव जावा, एंड्रॉयड और कॉटलिन, और the interfaces are developed over Java, Android or Kotlin, then Gradle will help you. Okay, how exactly it helps you? It actually helps you to build the specified kind of applications, or you can say it can help you to implement all the services, all the external services or internal services compatibly, to provide an interface, or you can say an environment to these things. जनरली क्या होता है ग्रेडल का यहाँ पे? अगर हम ग्रेडल को यहाँ पे यूज करते हैं, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक? हमारे पास यहाँ पे जो भी ग्रेडल है, ये ग्रेडल का एग्जैक्ट काम रहता है ताकि हमारे पास जावा, एंड्रॉयड या कॉटलिन पे बनी हुई कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसको बिल्ड करना और सारे के सारी फंक्शनैलिटीज को मैनेज करना, ये सब ग्रेडल का काम रहता है। ठीक है, तो मतलब मैं आपको देखिए ग्रेडल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके एप्लीकेशन में कभी कोई दिक्कत आएगी तो उसे ग्रेडल ही सॉल्व करेगा। ठीक है, या अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको मैनेज करने का काम भी ग्रेडल ही करेगा, आप इसे दूसरी तरीके से मैनेज कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? नाउ इनटू दिस ग्रेडल आई एम चूजिंग ग्रेडल हियर, इनटू दिस ग्रेडल आई एम यूजिंग कॉटलिन हियर, एंड आफ्टर दिस कॉटलिन आई एम जस्ट यूजिंग क्रिएट. When I am click on create, here the system is that it shows me some kind of, okay, wrapper spaces. I have to so I just created my app and थोड़ी देर में बिल्ड होना चालू हो जाएगी। ये बिल्ड होना चालू हो गई है, तो इसका इंटरफेस आपको ज़्यादातर बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसे अभी आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में काम किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा इंटरफेस है इसका। ठीक है, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देम, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट, एंड वंस इट कंप्लीटेड वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट.
जेडीके में हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट ना, उसके अंदर हमने कुछ, हाँ उसके अंदर ऐसा होता है, आपको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जब आपका सिस्टम, जैसे आपका ये जो इंटेलिजी आइडिया है, जब ये इंस्टॉल हुआ ना, तो ये ऑटोमेटिकली जेडीके के साथ में आता है। हाँ हाँ। हाँ अच्छा, तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो एक बार मैं चेक करके इसमें बताता हूँ। वैसे 1.8 आ जाता है। हाँ ऐसा कर लीजिए, प्रोसेस कर लीजिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, ऐसा होता है जेडीके को है ना, हम लोग आगे भी जाके चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम जेडीके सेम जेडीके पे काम करेंगे। मल्टीपल जेडीके होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी प्रोसेस भी कर लेते हैं तो भी ऐसे कोई इशू नहीं पड़ेगा आगे, आप बाद में चाहें तो बाद में चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो थोड़ा, या तो ये बिल्ड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर है ना, मैं आपको बिल्कुल जीरो से काम करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो हेयर इट इज नाउ बिल्डेड। नाउ what we have to do, so first of all I am just removing all these codes from here like this, and I need this package name only। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, हमें कोड में मैंने सारा कोड रिमूव कर दिया है, मैं मुझे जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पैकेज नेम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बस पैकेज नेम रखा हुआ है, क्योंकि पैकेज नेम इंपॉर्टेंट है, अगर पैकेज नेम हटा दूंगा तो फिर ये कुछ काम करेगा नहीं मेरे लिए, ठीक है। अभी आप देखिए पूरी पूरी स्क्रीन खाली है। नाउ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से हम लोग कॉटन की स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम
which section we have to start a Kotlin file, we have to understand this part. Okay, so let's move to this, and now starting of Kotlin. So Kotlin का कोड कहाँ से स्टार्ट होता है, from which section Kotlin code starts. So we have to understand this thing, that to provide or to provide an entry point, to provide an entry point, एक entry point दिखाने के लिए, एक entry point बताने के लिए कि हाँ भाई आपका जो सिस्टम है, let's suppose that is the gate, and that is the entry point ऑफ माई एप्लीकेशन. ये मेरी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्रिएट एन एंट्री पॉइंट. हमें सबसे पहले एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करना होता है. तो ये एंट्री पॉइंट कैसे क्रिएट होता है? ये एंट्री पॉइंट क्रिएट होता है मेन फंक्शन से. ध्यान रखिएगा, एंट्री पॉइंट क्रिएट होता है मेन फंक्शन से. ये वाली बात क्लियर हो रही है? द एंट्री पॉइंट इज क्रिएटेड बाय हूम? बाय मेन फंक्शन. वामसी से क्लियर? ओम प्रकाश जी क्लियर हुआ? ओम प्रकाश जी क्लियर हुआ? सुशांत, राजेश जी क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है. सो हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इट? ओके, द पार्ट इज दैट हमें सबसे पहले मेन फंक्शन ही बनाना होगा, उसी के बाद काम होगा इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ मेन फंक्शन, देन ओनली वी कैन डू अदर थिंग्स. ओके, सो हाउ वी विल गोइंग टू क्रिएट इट? टू क्रिएट अ फंक्शन, to create a function हमें क्या यूज करना होता है? What exactly we are going to use? We have to use a keyword called fun. Okay, there is an acronym, there are some acronym. Let's suppose if I am using fun, that means function. Okay, so what exactly we have to use? We have to write fun like this, and after it we have to write main function like this. So ये हमारा एक मेन फंक्शन बनके रेडी हो गया है. दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ मेन फंक्शन, एंड ये मेन फंक्शन ही रेस्पॉन्सिबल होगा हमारी कॉटलिन एप्लीकेशन को एक तरह से आप बोल सकते हैं एंट्री पॉइंट बताने में, रास्ता दिखाने में यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके, चलिए. सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू यूज? जस्ट लाइक जावा, इनटू जावा वी आर यूजिंग into Kotlin there are lot of features which are exactly same with Java. यहाँ पे Kotlin के अंदर कई सारे कोड्स ऐसे हैं तो बिल्कुल जावा जैसे ही है. अगर आपने थोड़ी बहुत जावा पढ़ी हुई है, इफ़ यू नो जावा लिटिल बिट, देन यू विल इजीली डू Kotlin into your own. अगर आपको जावा थोड़ी बहुत भी आती है तो आप Kotlin आराम समझ जाएंगे. कहने का मतलब ये है, जावा के अंदर जब भी हमें लाइन को प्रिंट करना होता था तो हम लोग यूज करते थे प्रिंट एलन. प्रिंट एलन का मतलब होता है प्रिंट लाइन. ठीक है, तो जैसे जावा के अंदर प्रिंट एलन यूज होता है, कॉटलिन के अंदर प्रिंट एलन यूज होता है. जस्ट लाइक जावा, टू प्रिंट अ लाइन वी आर यूजिंग प्रिंट एलन. सेम एज इनटू कॉटलिन वी आर यूजिंग प्रिंट एलन एज वेल. So like this, I am just using print ln like this. And into this, what exactly I have to use? Let's suppose I am using hello world. Hello world like this. Okay. And let's build it. So to run it, we just have to click over this run main.kt part. And once I run over it, the terminal will show whatever we write. टर्मिनल जैसे हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, टर्मिनल जो भी हमने दिखाया, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, टर्मिनल हमें यहाँ पे शो करा. Okay, just have to wait for a while. You will see that we have hello world here. That is हमने जो भी यहाँ पे लाइन लिखी थी hello world, वो यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. So now what exactly we have to understand is variables.
So I have a question with all of you that वेरिएबल्स क्या होते हैं. मेरा आप सबसे सवाल ये है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. वामसी, व्हाट इज वेरिएबल? सुशांत, व्हाट इज वेरिएबल? डेटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं. ओम प्रकाश जी, वेरिएबल क्या होता है? राजेश जी, वेरिएबल क्या होता है? ठीक है. देखिए, मैं आपको एक बहुत बेसिक सी लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ. वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स नथिंग बट आर कंटेनर्स. ये हमारे पास कंटेनर्स की तरह काम करते हैं. वेरिएबल्स आर नथिंग बट एक्ट्स लाइक कंटेनर्स. ओके, इज इट क्लियर? फर्स्ट थिंग इज क्लियर. ओम प्रकाश जी, क्लियर हुआ? कंटेनर्स की तरह एक्ट करते हैं. नाउ द पार्ट इज व्हाई कंटेनर. So container are responsible to store some kind of value into them, to store some stuffs into them. जिस तरह से कंटेनर के अंदर हम कुछ सामान अपना भर सकते हैं, उसी तरीके से वेरिएबल्स भी एक तरह के कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज फिक्स अप कर सकते हैं या वैल्यूज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? ओम प्रकाश जी, क्लियर हुआ है? वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने, आप लोगों ने सही डेफिनेशन दी थी. मैंने बस एक नाम बताया, कंटेनर्स ये होता है. ठीक है. So now, what exactly we have to learn it, that we have two different components here. To design these components, to design these containers, or to define the variables, we have two different components. One is val, and one is var. One is val, and one is var. So what is the difference between val and var is, whenever we will design our component or whenever we will design our container with the help of this val, जब भी हम लोग val की मदद से कोई भी कंटेनर डिजाइन करते हैं, कोई भी वेरिएबल डिजाइन करते हैं, तो डेट मीन्स कि हम इम्यूटेबल वेरिएबल बना रहे हैं. ठीक है. whenever we will use or whenever we will design the variables with the help of this val keyword, then we will, or we can say that we are designing the variable with immutable property. The variables whatever we are going to design with this val property or this val keyword are immutable in nature. Okay, Vamsi, what is immutable? ओम प्रकाश जी, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, इम्यूटेबल का मतलब? कोई दिक्कत नहीं. सुशांत, इम्यूटेबल? हाँ, चेंज नहीं. तो इम्यूटेबल का मतलब होता है वामसी, हाँ, या सेम एज फाइनल. आप लोगों ने फाइनल पढ़ा होगा, है ना? आप लोगों ने फाइनल पढ़ा होगा ना. फाइनल मीन्स एक बार अगर वैल्यू असाइन हो गई तो दोबारा चेंज नहीं हो सकती, है ना? कांस्टेंट बोल सकते हैं, फाइनल बोल सकते हैं, बट कांस्टेंट और फाइनल में थोड़ा सा अंतर होता है. ठीक है. चलिए, ये मैं बाद में आपको कभी समझाऊंगा, जब एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तब समझूंगा इसे. ठीक है. So Vamsi, this immutable means that you will, once you will declare some kind of value, you will not be able to change it, to change it further. Okay. Let's suppose that if you place the value a is equals to 100, and how exactly you will placing it? You will placing it like this. Well, a is equals to 100. So if you need to change it
Further, let's suppose if you need that I need to add some values into it. So it will not be possible to add some kind of value or to change it further once you declare it with the help of val. Is it clear, Vamsi? Immutable means not changeable. ओके, ओम प्रकाश जी क्लियर हो गया? इम्यूटेबल मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. सुशांत, अच्छा राजेश जी क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है. इसी का उल्टा जस्ट अपोजिट हमारे पास होता है var. If you will go with var, it is as opposite as val. So if val is designing or creating immutable variables, then var creating mutable characters or mutable variables. Vamsi, is it clear? Okay. ओम प्रकाश जी, इसका क्या मतलब हुआ? म्यूटेबल का मतलब अपोजिट है, चेंज कर सकते हैं. सुशांत, राजेश जी क्लियर है? अच्छा, कैसे होगा ये चीज़? लेट्स सपोज इफ आई एम यूजिंग var a is equals to 100, then I can easily change this value from 100 to 200 or 200 to 300 at any point of time whenever I need. Okay, that is the part. So that is the difference between val and var. Okay, now let's move to another part, that what will be the structure of our code. हमारे कोड का स्ट्रक्चर, हम जब भी वेरिएबल डिजाइन करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. ठीक है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएबल डिफाइनिंग. So how exactly we are going to do this? First of all, I have to write the property, whether I'll make it final or whether I'll make it immutable or mutable. सबसे पहले हमें अपने स्ट्रक्चर के अंदर ये मेंशन करना पड़ेगा कि हम अपने वेरिएबल को म्यूटेबल बनाना चाहते हैं या इम्यूटेबल बनाना चाहते हैं. ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा. दोनों ही स्टेप में हम लिख लेते हैं इसको. आप इसको वेल भी लिख सकते हैं और मैं इसको अंडरलाइन करके वार लिख रहा हूँ. डेट मीन्स आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. वेल यूज़ कर सकते हैं, वार यूज़ कर सकते हैं. वेल यूज़ करेंगे जब इम्यूटेबल प्रॉपर्टी बनानी होगी, मतलब आप चाहते हैं कि फर्दर मेरे पास कोई भी चेंज ना हो. और वार हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास में हम चाहते हैं कि हाँ भाई ये वैल्यू चेंज हो सकती है हमारे पास. ओके, सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द प्रॉपर्टी that whether I make my variable immutable or mutable. First of all, we have to write it down. Okay, is it clear? Now the second thing is, so this is the first part. This is the first part. This is the first part. Now at the second part, what exactly we have to mention? We have to mention the name of variable. हमें सेकंड पोजीशन पे ये बताना होगा कि हम अपने वेरिएबल का क्या नाम रखना चाहते हैं. ठीक है. अच्छा, इतना होने के बाद में फिर हम यहाँ पे थर्ड स्टेप लेते हैं. तीसरा जो हमारे पास स्टेप होता है, ये हमारे पास होता है कॉलम लगाने का. तीसरा स्टेप हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है. तो ये स्टेप मैं कंबाइन करके लिख दे रहा हूँ. सो दिस स्टेप प्लस हमारे पास में होता है डेटा टाइप. ओके, सो दिस इज आवर थर्ड स्टेप. This is our third step. This is the second one. Here. So at the third position, we have to mention the data type along with this column part. Okay. So third position पर हमें क्या चाहिए होता है? हमें ये mention करना होता है कि हमारा data type क्या होगा. इस variable का data type हम क्या mention करना चाहते हैं, हमें ये mention करना होगा. थर्ड पोजीशन पे ही देना होगा. Okay. Now at the fourth position, we have to write the assignment operator like this, and at the final part
we have to write the value of value. This is the fourth part and this is the fifth part. जो हमारे पास 5 होता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी, ये नेम वेरिएबल दे दिया, ये हमारे पास डेटा टाइप है। डेटा टाइप में ये वाला जो पार्ट है दैट्स कॉल्ड एक्सटेंड्स, ठीक है, जो अलाउ करेगा, ये बताएगा कि भाई आपका जो वेरिएबल है किस टाइप का होने वाला है या उसकी किस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। this double column, this column named as extends. So Vamsi, have you know about extends? Okay, ओम प्रकाश जी, extend वगैरह का मतलब मालूम है आपको? सुशांत, सुशांत extend का मतलब मालूम है बेटा? ठीक है, राजेश जी extend का मतलब? आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा इनहेरिटेंस। Vamsi, have you learned this concept? Have you learned this concept inheritance previously at any point of time? Yeah, it is into object-oriented programming. So that means that अगर मुझे if I need to put all the properties of this data type into this variable, then how exactly we are going to transfer these properties? We have to extend it. Okay? हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी तभी हम इन प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर पाएंगे इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इस वजह से हम ये एक्सटेंड, ये डबल कॉलन यूज करते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ओम प्रकाश जी, समझ में आ गई आपको बात? ये इसका मतलब नहीं, स्टोरी होगा ना, जैसे आपने ये वैल्यू लिखी है 100, तो ये स्टोर होगा ना इसके अंदर, ये के अंदर इसको स्टोर होगा। अच्छा ये ओके, देखिए इसका मतलब ये है कि आपने सी प्लस में पढ़ा होगा ना कि हम पहले इंटीजर देते हैं फिर ए देते हैं इक्वल्स टू 100, है ना। तो इंटीजर ए देने का मतलब क्या था कि हम इस वेरिएबल को इंटीजर की प्रॉपर्टीज दे रहे हैं सर, ये होता था। यही चीज़ यहाँ पे है। लिखने बात सेम है, लिखने का तरीका चेंज हो गया है ना। इस बार हमने बस एक चीज़ चेंज करी है कि हमने इस प्रॉपर्टी को भी मेंशन करवा दिया इस बार, है ना। अंतर क्या है कि इससे ज़्यादा क्लियरेंस आ जाती है हमारे कोड के अंदर। अच्छा, ये डेटा टाइप क्या हुआ हमारे पास? व्हाट एग्जैक्टली दिस डेटा टाइप इज? these are the data types called integer, double, boolean, string. They all are the data types. ये सारे के सारे हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर, डबल, बूलियन, स्ट्रिंग, जो कि हम लोग अपने वेरिएबल्स में स्टोर कराते हैं। वामशी, इज इट क्लियर? सुशांत, क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए, उसके बाद हमें क्या देना होता है? इक्वल्स टू देना होता है। मतलब हम असाइनमेंट, ये हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल्स टू, जो सिंगल इक्वल्स टू दे रखा है, इसका काम है इस कंटेनर के अंदर जो भी हमने वेरिएबल बनाया हुआ है इसके अंदर इस वैल्यू को स्टोर कराना। ध्यान रखिएगा, अभी आप लोगों को कुछ अलग अलग तरीके के इक्वल्स टू दिखाई देंगे। आपको एक इक्वल्स टू दिखाई दे सकता है, आपको डबल बार दिखाई दे सकता है, आपको ट्रिपल बार दिखाई दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों की दोनों इससे मैच नहीं होते हैं कहीं। इन दोनों का काम अलग है, इसका काम अलग है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कंपेयर नहीं करा रहा है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको जो बतानी है, इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वेरिएबल डिफाइनिंग के टाइम पे जो हम सिंगल इक्वल्स टू लगाते हैं, ये असाइन करने के लिए होता है वैल्यू को।
ठीक है. At the time of variable defining, whenever we use this equals to, it means that we are going to assign some values to our containers. Okay, but we have different operators as well, that is double equals to and triple equals to. So this double equals to or this triple equals to will never be equals to or will never be an assignment operator. आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू ये कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होंगे, ये होंगे हर बार कंपैरिजन ऑपरेटर्स. दे आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, नॉट assignment operator. Vamsi, is it clear? That each and every time we have to use a single equals to whenever we are going to define variable. Okay? We will not going to use this double equals to or triple equals to into our container. So let's again work with it. So how exactly we are defining here? First of all, I am creating a variable with the help of val, and then I will create the variable with the help of var. So let's go with it. First of all, I have to use the property val. Then I have to write the name of our variable. हमें अपने variable का नाम लिखना है. जैसे मैंने अपने variable का नाम लिख दिया age, इस तरह से. ठीक है? तो मैंने यहाँ पे age of x लिख दिया है. अब हमें अगला काम क्या करना है यहाँ पे? The next thing is what we have to go with. I have to write the colon here like this, and after this colon, that means I am going to extend a part. After this column or after this colon, what exactly I have to use? I have to use the data type. I have to use the data type, so I am using data type integer like this or number. Some errors. Okay. Yeah, it is it. No, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. Actually वो लिखा था मैंने I small बना रहा था, इस वजह से कैपिटल से आएगा ना. And then what exactly we have to do? क्या करना है हमें? इक्वल्स टू लगाना है और उसके बाद वैल्यू डाल देंगे इस तरह से. That's all. ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारा वेरिएबल बन गया है, जिसमें हमने क्या बोला हुआ है कि ये जो एज ऑफ एक्स जो नंबर है, ध्यान रखिएगा, व्हाट्स द नेम ऑफ आवर वेरिएबल. हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? एज ऑफ एक्स हमारा वेरिएबल का नाम है. और एक किस तरह का है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये इम्यूटेबल टाइप का है. इम्यूटेबल इसकी प्रॉपर्टी है और इंटीजर टाइप वैल्यू इसने स्टोर करा के रखी है. ओके, वामसी, हैव यू अंडरस्टैंड दिस? Now, the second thing is that we are going to create a variable with the help of var. So how exactly we are going to create? We are using var age of y. Then I am going to use integer is equals to, let's suppose 30. So both of them has the same part. दोनों ही चीज़ों में आप देखिए ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमने चेंज कर दिया है क्योंकि सेम वेरिएबल नाम हम लोग नहीं लगा सकते. प्रॉपर्टीज हमने चेंज करी हुई है, बाकी सब कुछ सेम है. अब क्या अंतर आएगा? लेट्स सी द चेंज. क्या क्या इसमें चेंज आ सकता है? तो पहले हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं. ठीक है, तो मैंने प्रिंट कराया एज ऑफ एक्स को इस तरह से, और दूसरी लाइन में मैंने प्रिंट कराया एज ऑफ वाई को. तो इन द फर्स्ट लाइन आई एम प्रिंटिंग एज ऑफ एक्स एंड इन द सेकंड वन आई एम प्रिंटिंग एज ऑफ वाई. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग. सो during the printing we don't see any kind of differences between them. Now let's move to another part. I am adding some value plus 100 into it and adding into it plus 100. So I am adding plus 100 to both of them, or let's suppose plus 10 to both of them. Let's run it. So here it is changes. It makes some changes. Okay. One more thing is what I am going to use. Actually, हम लोग यहाँ पे प्रिंटिंग कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है. So I am just applying the change of value, so that will be 40. आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे 40 देर, अच्छा मैं अगर इसको एज ऑफ y को इक्वल्स टू 40 कर दूँगा ना, तो देखिए इसमें चेंज नहीं आया है, जबकि इसमें चेंज आया है. तो इसमें चेंज क्यों आया है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये हमारे पास में कैसा है,
ये हमारे पास में जो वेरिएबल है ये वेल टाइप का है। आप देखिए बोल रहा है वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड, है ना, ये इस वजह से हो रहा है ऐसा। जबकि जब हमने इसको प्रिंट करा के इसके अंदर वैल्यू दी तब हो गया था। रीज़न क्या था, क्योंकि जो भी उसके अंदर करंट वैल्यू आ रही थी उस करंट वैल्यू के अंदर हम 10 ऐड कर रहे थे, ना कि हम वैल्यू के अंदर रीअसाइनमेंट कर रहे थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे हमें, हाँ जी बताइए। नहीं होगा, देखिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा, रीज़न है ना इसका। रीज़न ये है क्योंकि आपने इसके अंदर नई वैल्यू तो डिफाइन कर ही रहे हैं ना आप इसके अंदर, इस वजह से। इसके अंदर करेंगे इसके अंदर हो जाएगा, इसके अंदर हो रहा है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझने वाली चीज़ क्या है जो हमें मतलब एग्जैक्ट ध्यान में रखनी है। वेल के साथ में हमें ये ध्यान रखना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट विद वेल, दैट वी कैन वी कैन नॉट reassign the value, reassign the new value। हम नई वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते इसके अंदर, पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं किसी वैल्यू, ठीक है। कैन डू रीयूज, हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा था, हम प्रिंट के अंदर एज ऑफ एक्स लिख के +10 जब हम लोगों ने किया था, व्हेन वी जस्ट राइट दैट प्रिंट एज ऑफ एक्स +10, then we actually do the reuse, then we actually reuse the variable instead of creating it। हमने यहाँ पे reusing करी थी वेरिएबल की, ना कि उसे क्रिएट किया था। जबकि जब हमने यहाँ पे लिखा when we write it like this age of x +1, so we are actually creating or we are actually reassigning the value here, that's why it provides me error, and here the printing is successfully done, ओके। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रीयूज हम कर सकते हैं, रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते वेल के साथ, ठीक है। वामसी इज इट क्लियर? ओके, ओम प्रकाश जी क्लियर है? राजेश जी, सुशांत क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, अच्छा कौन कौन से हमारे पास में क्या बोलते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल, विच काइंड ऑफ डेटा टाइप्स वी हैव, हम लोगों को ये समझना होगा। मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से, ये हमारे पास कमेंटिंग करने के तरीके होते हैं, दैट्स कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंटिंग। क्या क्या हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं हमें ये देखना है। द फर्स्ट वन इज इंट, दैट इज इंटीजर, ओके। द सेकेंड थिंग इज डबल, द थर्ड थिंग विल बी स्ट्रिंग, fourth thing will be, let's suppose, boolean, fifth thing will be character, that means car, and the sixth thing will be long. We have multiple variables as well, but today I'm just going with these things, okay। So अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों से, there's a small question to all of us, for all of us, that what is the difference between this integer and double? Vamsi, what is the difference between this integer and double? Have you any idea? ओम प्रकाश जी, इंटीजर डबल में डिफरेंस क्या है? हेलो, हाँ जी ओम प्रकाश जी, इंटीजर डबल में डिफरेंस क्या है? ठीक है। सुशांत, इंटीजर डबल में डिफरेंस? गुड, ठीक।
Vamsi, you have to add one more thing, that into double we are taking decimal as well as long numbers. Okay. So what is the difference between integer and double? Integer are the whole numbers. That means we will go with 1, 2, 3, 4, 5 as such, and we are not be able to write 1.5, 1.45, 1.6 and so on. Okay. मतलब हम यहाँ पे होल नंबर लिख सकते हैं बट डेसिमल नंबर नहीं लिख सकते, जबकि डबल के अंदर हम लोग होल नंबर भी लिख सकते हैं प्लस डेसिमल भी लिख सकते हैं. ठीक है. But whenever we will write whole number, each and every time, let's suppose if I write 1, so each and every time it will represents to me, it will comes to me like 1.0. So हम लोग डबल के अंदर होल नंबर और डेसिमल दोनों ही लिख सकते हैं, पर जब भी हम यहाँ पे होल नंबर लिखेंगे, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 1 लिखा, तो 1 लिखने के बावजूद भी क्या होगा, वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. 1 लिखने के बावजूद भी 1.0 लिखेगा. ये क्लियर है आप लोगों को? कौन-सी इज इट क्लियर? Now move to another part. String. String will be text. Boolean will be true or false. True or false. Character will be single character. For example, A, B, C, and so on. Okay. Long will be large integer numbers. Large integer numbers. Okay. So we have multiple data types here like this, and we can use these data types for developing multiple things. So आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें समझी हैं, आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें करी हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा टाइप क्या होता है, ग्रूवी क्या होता है, DSL, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है. आप लोगों को आज ये रिवाइज करना है प्रॉपर्ली. ठीक है, ढंग से इसको रिवाइज कर लीजिए. कल सैटरडे है